Hello students, I am Ritesh sir, your chemistry teacher, and our topic is can matter change its state, or you can say interconversion of state of matter. State of matter means solid, liquid, gas. Means can solid got converted into liquid or in gas? Yeah. Answer is yes. Yes, we can convert solid into liquid, liquid into gas, or vice versa. If yes, then what are the factors? What are the conditions required for the same? There are two factors which affect state of matter, or two factors which are responsible for interconversion of state of matters. First one is temperature and second one is pressure. It means by the change of temperature and pressure we can change state of matter. First one is temperature and second one is pressure. Okay, let's start with temperature. Okay, let's start with temperature. Solid, liquid and gas. Solid to liquid, liquid to gas. On heating solid means if we increase the temperature of solid, it got converted into liquid. Right? On increasing temperature we can convert solid into liquid, like ice into water. Okay? And the name of that process is called melting. Solid into liquid is melting. Right? You can also melting means fusion. Melting or fusion both are same thing. Solid into liquid is called melting. What is melting? The process during which a solid changes into its liquid state at fixed temperature. At fixed temperature on heating is called melting. Means conversion of solid into liquid is called melting. Now, what happens if we decrease the temperature of liquid? Means take water in a container and preserve it and leave it in fridge for few hours. What will happen? The liquid got converted into ice. Okay? On increasing we can convert solid into liquid. On decreasing the temperature we can convert liquid into solid. Right? On increasing temperature we can convert solid into liquid. Solid into liquid on increasing temperature. And vice versa, liquid into solid on decreasing temperature. Right? Heating and cooling. And the process is called cooling. Okay? Again, if we rise the temperature of liquid, then it got converted into gas. That is vaporization. And if we decrease temperature of gas, it converted into liquid.
we decrease, that is on cooling it got converted into liquid. So there are two terms. What happen if we increase the temperature, or what happen if we decrease the temperature of a state of matter. There is one more condition, when solid directly got converted into gas or gas directly converted into solid. That is called sublimation. That is called sublimation. तो what happen, इसे हम वन बाई वन, हर एक टर्म को वन बाई वन देखते हैं अच्छे से कि क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के कन्वर्जन में. तो फर्स्ट कंडीशन टेम्परेचर का था. हमने टेम्परेचर राइज किया, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ. हमने एक एग्जांपल ले लिया आइस का. अगर मैं आइस का एग्जांपल लेता हूं तो आइस क्या है मेरा, एक सॉलिड है. यह फ्रिज में रखा हुआ आइस है. जब फ्रिज से निकाल के मैं कमरे में लाता हूं, इसे रूम टेम्परेचर पे रखता हूं, तो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस. तो ये पहले तो आइस के फॉर्म में है, मतलब फ्रिज के अंदर है. जैसे ही मैं रूम में जाता हूं तो 0 डिग्री से 25 की तरफ ये आइस आता है. आते ही ये क्या होता है, सॉलिड आइस से मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. तो जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, ये कन्वर्ट होके लिक्विड में बदल गया, यानी वाटर बन गया. राइट. अब मैं इस वाटर को क्या करता हूं, इस वाटर को एक कंटेनर में लेके गैस स्टोव पे रख देता हूं, बर्नर ऑन करता हूं और हीट स्टार्ट कर देता हूं. यानी अगेन मैं अगर इसे हीटिंग स्टार्ट करता हूं तो वाटर धीरे धीरे क्या होगा, बॉयल होके इवोपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. तो मैं यहाँ पे दोबारा टेम्परेचर अगर राइज करता हूं तो व्हाट विल हैपन, लिक्विड गॉट कन्वर्टेड इनटू गैस और वेपर. अगेन अब क्या हो रहा है, वेपर निकल रहा है. आप क्या करो, एक प्लेट उस निकलते हुए वेपर के ऊपर लगाओ. जैसे आप ऊपर लगाओगे तो क्या देखोगे आप, उस प्लेट के ऊपर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स लग गए हैं. प्लेट्स के ऊपर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स लग गए. इट मींस इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. जब डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो ये गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में. फिर ये लिक्विड है, इसे उठा के मैं और डिक्रीज कर दूं टेम्परेचर, यानी इस वाटर को उठा के फ्रिज में रख दूं, तो क्या होगा, फिर ये आइस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा. यानी अगर टेम्परेचर को, इसका मतलब क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड गॉट कन्वर्टेड लिक्विड एंड लिक्विड गॉट कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर द इंक्रीजिंग टेम्परेचर. Vice versa, if you decrease the temperature of gas, it got converted into liquid and liquid into solid. One more condition is there. When ice directly got converted into, solid directly got converted into gas. Solid into gas or gas into solid. Process is sublimation. Let us take an example of कैम्फर. कैम्फर मीन्स कपूर. कैम्फर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है. टेम्परेचर जैसे ही हाई होता है तो कैम्फर जो होता है उड़ना शुरू हो जाता है. कहते हैं कैम्फर उड़ गया, कपूर उड़ गया. तो कैसे हो गया, वो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, यानी टेम्परेचर मिलते ही वो सॉलिड था और डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. अब इन सारे प्रोसेस के बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इट, कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है. पहले इन प्रोसेस का एक बार ठीक से नाम समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है. इफ सॉलिड गॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, name is solidification, right? Solidification. Liquid, gas, melting. Sorry, this one is called melting. Solid into liquid, melting. Liquid into gas, vaporization.
कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मीन्स गैस इंटू कन्वर्जन ऑफ गैस इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड इंटू लिक्विड इट्स मेल्टिंग और फ्यूजन, लिक्विड इंटू सॉलिड इज सॉलिडिफिकेशन। तो ये नाम होते हैं, ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आप लर्न कीजिएगा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन या मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन और इवोपरेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, राइट। ये सारे टर्म्स हैं। तो इनसे हमने ये देखा कि कैसे कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर, अब हम बात करते हैं प्रेशर की, कि व्हाट हैपन इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर, कैन इट change the state of matter? Yes, on changing pressure we can change the state of matter. Like हमें क्या करना है कि प्रेशर को इंक्रीज करना होता है और साथ ही साथ टेम्परेचर को डिक्रीज करना होता है। यानी on increasing temperature and decreasing temperature we can convert solid into liquid or solid into gas. For example, we can convert hydrogen gas into liquid, that is called liquefaction. We can convert hydrogen gas into liquid on increasing pressure. When we increase the pressure, suppose that हम एक कंटेनर लिए हैं, ऐसा नहीं, एक सिलेंडर लेते हैं, इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा देते हैं, ये पिस्टन है, पिस्टन को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहां मेरी हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो इस हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करते जाएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस अपने गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर मेरा डिक्रीज होना चाहिए, तो ये कंडीशन होता है। तो ये होता है, ये कंडीशन है हमारा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। एक और बता रहा हूँ, जो सब्लिमेशन का अपना एग्जांपल था जिसमें था कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस एंड गैस इनटू सॉलिड, तो गैस इनटू सॉलिड। एग्जांपल इज ड्राई आइस। ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस इज सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। होता क्या है, हम एक वैसे ही पिस्टन लेते हैं और इसके अंदर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, वेरी हाई प्रेशर, ऑन अप्लाइंग वेरी हाई प्रेशर CO2 गैस इज डायरेक्टली गॉट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ये डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब्लिमेशन का भी अपना एग्जांपल है जिसमें गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का भी एग्जांपल है और ये एग्जांपल बताता है कि कैसे प्रेशर अप्लाई करने से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। ओके, तो ये था अपना इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। थैंक्स फॉर टुडे।